ثانی اسنین اذ ہما فی الغار، کہ جب غار میں وہ ایک کے ساتھ دوسرا تھا، کون؟ اذ یقول لصاحبہ، جو کہہ رہا تھا وہ اس کا صاحب تھا، وہ اس کا جو کہہ رہا تھا کہ حضور وہ کافر آ گئے، وہ اس اکیلے کا ایک اکیلا صاحب تھا۔ لا تحزن، نہ ڈر، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ لفظ آتا ہے ثانی اسنین، یہ عربی کا صیغہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے دو کا تیسرا، دو کا، دونوں کے ساتھ یوں مفہوم کر لو کہ تیسرا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ڈر نہ، غم نہ کر، ایک صاحب سے ایک کہہ رہا تھا کہ تیسرا ہمارے ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ ڈٹ گئے، قالوا ربنا اللہ، کیونکہ کہہ لیا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اللہ نے تدبیر کی، یہاں میں اہل تشیع پر کوئی نکتہ چینی نہیں کرتا، جو صاحبوں والی بات ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ اللہ بھی جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں کروڑوں اربوں خربوں بار کہ اللہ کی کسی تدبیر کو جھوٹ کہنا یہ کفر کی علامت ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ کا جھوٹ نہیں ہوتا، اللہ تدبیر کرتا ہے۔ جھوٹ کیسے؟ وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ دیکھو اندر موجود ہیں، اندر موجود ہیں، لیکن معاملہ کچھ غار کے آگے مکڑی کا جالا تنا ہوا نظر جو آتا ہے، اور اس نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں کبوتری نے، تو اللہ نے وقوع اس طرح کا بنا دیا کہ یہاں تو پتہ نہیں کئی سالوں سے جالے لگے ہوئے ہیں، یہاں کون آ سکتا ہے؟ اور یہ بات کافروں کے منہ سے نکلی۔ ابو جہل نے خود کہا کہ اب غار میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں تو جالے لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ جانور پولا پالا، اس نے انڈے دیے، ادھر بیٹھے ہیں، جوڑا بیٹھا ہے، اندر جائیں گے تو پھر ان کو تکلیف ہوگی اور یہ مکڑی کو بھی تکلیف ہوگی۔ اچھا، انہیں بدبختوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مکڑی کو تکلیف دینا تو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ کفر جو ہے یہ بندے کو اندھا کر دیتا۔ بزرگوں کی محبت دل میں نہ ہو تو دل سخت ہوتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، رحم پیدا ہو، دل کے اندر خشیت پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، انہیں چاہیے کہ وہ بزرگوں کی محبت کا اپنے گلے میں توگ ڈالیں، بزرگوں سے محبت کریں، اللہ والوں سے پیار کریں، عقیدت کریں، ان کے آگے سر جھکا کر انہیں ملیں۔ اللہ اللہ۔ سراقہ بن مالک گھوڑے سے اترا، تیر کمان میں رکھ کے سیدھا کیا، صدیق اکبر دوڑ کے آگے ہو گئے اور اسے پکڑ لیا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اپنی سواری کی طرف دیکھا تو وہ زمین میں دنسی جا رہی تھی۔ اس نے تیر کمان پیچھے کر لیا، خود بھی اس کے پاؤں نیچے جا رہے تھے۔ بھائی پتریلی زمین ہے، لیکن زمین بھی کملی والے کی غلام ہے، حضور کی حمایت میں ہے، حضور کی محبت کا حق ادا کرتی ہے کہ او دشمن رسول، تو میری پشت پر کھڑا ہو کے اللہ کے رسول کو ایذا دینا چاہتا ہے، میں تجھے زندہ کو نگل جاؤں گی۔ اس نے واسطہ ہاتھ باندھ کہنے لگا، محمد بن عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے، میں معافی مانگتا ہوں، آقا کریم اتنے کریم ہیں، اتنے رحم دل ہیں، ایک بار معافی مانگی، میرے آقا کریم کا اشارہ ہوا تو زمین کے اوپر آ گیا۔ اچھا، اس نے سمجھا یہ اتفاقی حادثہ ہے، پھر اس نے نا تیر سیدھا کیا تو صدیق اکبر کو حضور نے روک دیا، تو انہیں نہیں جانا، جو ہمیں مدینے لے جانا چاہتا ہے نا وہ روک بھی لے گا۔ اس نے پوری زور سے چلایا نا جب، لیکن تیر آگے نہیں نکل رہا، وہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے، کمان کام نہیں کرتی، تو خود کو دیکھا تو پھر اتنا زمین میں دنس گیا۔ چل پڑے حضور آگے، پیچھے سے
सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी का वास्ता दिया, सिद्दीक का वास्ता, मुझे बचा लो, अमान अमान या रसूल अल्लाह अमान। क्योंकि अबू जाल ने कहा था जो मोहम्मद को ज़िंदा मुर्दा पकड़ के माज़अल्लाह लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा, एक बाग दिया जाएगा खजूरों का। इस दुनिया के हिर्सो हवस ने उसको अंधा किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आके मेरे आका करीम ने फिर मुड़ के पीछे देखा, फरमाया ओ सराका बात सुन मेरी, तू क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं चला अभी तक कि मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता चला? सराका मैं तुझे एक बात ना बताऊं, वो वक्त बड़ा करीब आने वाला है कि जब कैसरो किसरा के बादशाहों के कंगन तेरे हाथों में पड़े हुए होंगे। अच्छा, पहले जो बादशाह होते थे ना वो सोने और चांदी के कंगन पहना करते थे, कंगन। तो हुजूर ने फरमाया वो कैसरो किसरा, वो शहनशाहों के जब वो फतह होंगे इलाके तो उनके कंगन जो हैं वो तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। वो वक्त याद करना जो मैं कह रहा हूं तुझे। दिल में नरमी पैदा हो, हाथ से तलवार छूट गई, हुजूर की तरफ आगे बढ़ा। मेरे आका करीम ने उसके दोनों शानों पे हाथ रखा, फरमाया सराका बता क्या चाहता है? गर्दन को झुका कर कहा, हुजूर और कुछ भी नहीं चाहता, आपकी गुलामी का पटा गले में डालना चाहता हूँ। हुजूर करम फरमा दे, मुझे कलमा पढ़ा दे, मुझे अपने गुलामों में शमार फरमा ले। आका करीम ने कलमा पढ़ाया, आया था सर लेने को गया सिर दे के, और फिर हुजूर के साथ जाना चाहता था। मेरे आका करीम ने मना फरमा दिया, फरमाया तुम वापस चले जाओ, जाओ वापस चले जाओ, वहाँ कुछ मुसलमान हैं उनमें जाकर उनकी मदद करो और उनसे नमाज सीख लो, उनके साथ जाके नशिस्त व बर्खास्त करो। आप वहाँ से हुजूर चले। हजरात गिरामी 8 दिन के अंदर अंदर 11वें दिन हुजूर फिर तैबा शरीफ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर आपने मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर एक रेत का टिब्बा देखा। उस टिब्बे के पास 3 झोंपड़ियाँ थीं। एक उम्मे माबद की झोंपड़ी थी, सिद्दीक अकबर का एक तीसरा साथी था। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर माँ बाप फिदा हो जाएं, अब तो होंठ सोख गए, ज़बान भी कांटा बन गई। मेरे आका करीम ने फरमाया ठहरो। सामने वाला पर्दा जो था वहाँ खड़े हुए। हुजूर ने आवाज़ लगाई, अंदर से एक माई आई। आका करीम ने फरमाया को खाने को मिलेगा? वो कहने लगी हम खाना रखते नहीं हैं, कभी कभी मिलता है खाने को, यहाँ हमारे पास कहाँ को पानी। कहने लगी वो भी कोई नहीं। फरमाया वो सामने बकरी बैठी है, अगर तू इजाज़त दे तो उसका दूध दो लें। कहने लगी वो तो उसके तो हड्डियों में गुद्दा भी नहीं है, वो तो हड्डियों का पिंजरा है, उठ नहीं सकती, बैठ जाती है, गिर के बैठ जाती है, उठ नहीं सकती, हम उठाते हैं। फरमाया कोई बात नहीं, तुम इजाज़त दे दो, दूध हम ले लेंगे। और वो माई हुजूर का चेहरा देखती थी, कभी पाँव देखती थी, सर से पाँव तक हुजूर को देखती थी और अंदर ही अंदर से फिदा हो रही थी। और जब हुजूर बकरी के सामने गए ना तो बकरी फ़ौरन उठ के खड़ी हो गई, आका का इस्तकबाल किया और मैं करके हुजूर की तारीफ़ की। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने सर से लेकर दुम तक आपके उसकी कमर पर हाथ फेरा, बकरी की कमर पर हाथ फेरा। बकरी देखते देखते कुछ की कुछ हो गई, हालत ही बदल गई और खीरी में दूध उतर आया। आका करीम ने माई को आवाज़ लगाई, बर्तन लेकर आओ। एक बरा, फिर दूसरा बरा, फिर तीसरा बरा। घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। बकरी भी फरब्बा हो गई, बकरी शिहार और तंदुरुस्त हो गई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए, उनको पिलाया, माई को पिलाया, उसके बच्चे को पिलाया, खुद पिया। अब हुजूर थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके। उस माई के घर की दरो दीवार जो थी ना वो मुअत्तर हो गई खुशबुए रसूल से। अब क्या होता है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, अल्लाह अकबर। तो शाम को ना बकरियां लेकर वो माबद का वालद घर आता। घर आके कभी इस दीवार को देखता है, कभी ऊपर को देखता है, कभी इधर को देखता है, कभी उधर को। तो कहता है माबद की माँ मुझे ये तो बताओ कि आज हमारा घर जो है इससे खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं, बात क्या है? तो फौरन वो बच्चा बोला, अम्मी अम्मी इसको
अब्बू को वो तो बात बताओ ना, वो एक आया था हुसैन चेहरे वाला। तो गुलाम रसूल यहाँ भी एक अपनी मोहब्बत के नजराने पेश करते हुए कहते हैं, थोड़ी देर हुई। माई ने कहा थोड़ी देर हुई, एक आया कालियां जुल्फां वाला, 2 घड़ियां पल इथे बह के कर गया नूर उजाला। अच्छा अम्मा, वो बकरी वाली बात भी बता ना अब्बू को, मेरे अब्बू को बता बकरी वाली बात। वो बकरी वाली बात भी बताई। फिर वो बैठे थे, क्या बातें करते थे। जो जो हुजूर ने बातें की वो घर में बातें होनी शुरू हो गई। हजरात गिरामी उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं, लोगों बेदार हो, वो अपनी रूहों को भी बेदार करो, अपने ज़मीर को झंझोड़ कर बेदार करो। तुम्हारा मसलक कितना हक पर कायम है, और अल्लाह कायम रखे कि उस माई ने और उम्मे माबद ने और उसके वालिद ने रोज़ाना शाम को बैठकर कमली वाले की दास्तान सुननी और सुनानी शुरू कर। यानी वो हमारे उलमा कहते हैं सीधे लफ्ज़ों में, जैसे हम सीधे साधे हैं, अगर सीधे लफ्ज़ों में इसको कहें कि ये क्या शाम को करते थे, तो वो मिलाद मुस्तफ़ा करते थे। रोज़ाना शाम को माई के घर में हुजूर का मिलाद होता था। कभी हुस्न की बात होती, कभी मौजज़ा बरकत का होता था, कभी बकरी की बात छिड़ जाती, कभी दूध की बात छिड़ जाती, कभी आका की जुल्फ़ों का बयान छिड़ जाता, कभी वद्दुहा के चेहरे की ज़या की बात छिड़ जाती, कभी हुजूर की चाल की बात होती। कुर्बान जाएं, रोज़ाना शाम को जब ये घर वाले इकट्ठे होते थे तो वो बैठ कर कहते, रोटी बाद में खा लेंगे, पहले मुबारक की बात सुनाओ। नाम रख लिया मुबारक। हाय 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 यारो, क्या है, कुर्बान जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम फिर उस आबादी में पहुँचे कि जिस आबादी में अल्लाह का हुक्म था। मुख्तसर ये है कि वहाँ सारे मदीने वाले लोग मुंतज़िर थे, मोहब्बत वाले थे। आका की डाची जब नज़र आई ना, पहाड़ की खाई से नीचे से गुजरती हुई, तो छतों पे ऊपर से देखकर बड़ों ने पहाड़ के टीले पर देखकर ये कह दिया, अशरकल बद्रु अलैना, अशरकल बद्रु अलैना मिन तलातिल वदाई, वाजबल शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। नहीं साहब, हम पर खुदा का शुक्र करना वाजिब हो गया कि वो तैबा का चांद आया। आहा, जब हुजूर आ गए ना, तो गली कूचों पर ऊपर देखा छतों पे वो बच्चियाँ, तो वो दह बजा के ना तो हुजूर की नात पढ़ रही थी। बच्चियाँ, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ। हाँ हाँ, हम हैं बच्चियाँ बनी नज्जार के आली घराने की, हम हैं बच्चियाँ बनी नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हुजूर का इस्तकबाल किया उन्होंने। कोई कहता मेरी तरफ आए, कोई कहता मेरी। अबू ज़र गफ़ारी भी कहते थे मेरी तरफ। अबू अयूब अंसारी वो रो रहे थे, यूं चादर का पल्ला रख के। आका करीम की निगाह पड़ गई। सरकार ने फरमाया इसको बुलाओ। तू क्यों रोता है? अर्ज़ की हुजूर ये बड़े अमीर कबीर लोग हैं, हो सकता है किसी की तरफ आप चले जाएं। मैं मदीने में सबसे ज़्यादा गरीब हूँ हुजूर। मेरे आका करीम ने क्या किया, डाची की मुहार जो थी उसकी गर्दन पे रख दी। अब पता चल जाए कि हुजूर की डाची को कितना इल्म है, लोगों को डाची की अजमत का पता चल जाए। डाची इधर देखती है, इधर जाए देखती है, हुजूर डाची पे तशरीफ फरमा है, किसी तरफ का इशारा नहीं हो रहा। डाची सीधी गई, आगे टर्न लिया, फिर दाएं हुई, थोड़ी सी बाएं होकर सीधा दरवाज़ा सामने लगा हुआ था, टूटा फूटा दरवाज़ा था, उस दरवाजे के आगे जाके बैठ गई। जब बैठी तो हुजूर उतरे पीछे से। अबू अयूब अंसारी 1 2 3 4 5। हुजूर ने मुड़ के फरमाया, अबू अयूब अंसारी क्या गिन रहा है? अर्ज़ की थी हुजूर मैंने सुखना सुखी थी, असा सुखना सुखी सी कि जे कमली वाला साडे घर आवे तो जिन्ने पैर चल के आवे हर पैर ते एक गुलाम आज़ाद करांगा।
ਮਾੜੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਡਾਚੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ। ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਏ ਮੇਰਾ ਨਬੀ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल